Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the last lectures, we can study about the different type of protections, so that okay. So, study the difficulties arise in the differential protection systems. Now, the first one is, we know that there are the two types of coils, restraining coils and operating coils, and the operations of these two coils, we can conclude that the fault is internal or externals. So this one is the differential protection system. So but in the differential protection systems have some difficulties arise when the protect the transformers. The first one is overload tape changing tape changings, then after the unmatch, then magnetizing current or inverse current, difference in the pilot wire length. Yes, so we can see that here the switch, yes, at that time the switch is closed, at that time the spark will be generated. You can see here the movement of this to contact of these to this, जब टैप चेंजिंग यहाँ से यहाँ पे मूव होता है, यू कैन सी हियर, यहाँ से यहाँ पे मूव होता है, तब यहाँ पे एयर गैप की वजह से स्पार्किंग होता है। ये फॉल्ट नहीं है, बट द टैप चेंजिंग में यही जो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस आ जाती है और द स्पार्किंग कंडीशन आती है, जो बहुत कम समय के लिए होती है, बट द differential protection systems as a consider as a fault. So this one is the difficulty arise in the tape changings. Then after, yes, then after the unmatched T, यानी कि यहाँ पे हमने देखा था कि प्राइमरी साइड सिटीज़ एंड द सेकेंडरी साइड सिटीज़, इफ़ द रेशियो इज डिफर, these two cities the ratio are differs, at that time learn the magnetizing inverse currents. एंड व्हाट इज़ द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट? क्या होता है कि जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हम देख रहे हैं उसको मैग्नेटाइजिंग कर्व बोलते हैं, बट जहाँ पर ड्रॉबैक होता है स्पाइक में उसको मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट कहते हैं। सो ये बेसिक थियोरी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट्स में और जनरली द स्टार्टिंग टाइम 5 to 6 टाइम ऑफ द फुल लोड रेटेड होता है। जैसे कि हमको पता है कि स्टार्टर्स मोटर में क्यों यूज़ली यूज़ होती है, क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर्स के इनिशियली मोटर हाई करंट पास करता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। यहाँ पे भी वही चिंग है। देन आफ्टर हमने देखा था डिफरेंशियल पायलट वायर्स, जो दो सिटी के बीच में जो सेंसिंग होती है, जो हम रिस्ट्रेनिंग कॉयल कनेक्ट करते हैं, उसका जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो दे हैव द वेरी डिफ़िकल्टी टू आइडेंटिफाई द protections. Now the protection against the magnetizing curve, then we can use the harmonic restraining method and core type अर्थ फोल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। सो ये सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी की थी। नाउ द टुडेज टॉपिक इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। सो अभी तक हमने जो देखा था वो बेसिक जो अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ है और उसके लिए क्या प्रोटेक्शंस है। नाउ द अदर्स प्रोटेक्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मर, द फर्स्ट वन इज़ द ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा कि हाउ द ग्राउंड फॉल्ट अफेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन। सो बेसिकली हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में दो कनेक्शंस होते हैं। देर आर द टू टाइप्स ऑफ connections, star connections and delta connections. When if I says that the three phase three wire system, at that time only the three phase consider, but when we say that
the 3-phase 4-wire system, it means that कि अर्थ फॉल्ट यानी कि न्यूट्रल वायर हमने दिया हुआ है. सो इन दिस सिस्टम बेसिकली वी नो दैट कि तीनों फेज 120 अपार्स होने चाहिए एंड उसका करंट सपोज आई ए आई बी एंड आई सी है एंड इज इक्वल टू दी ज़ीरो. वी नो दैट entering current and the outgoing current will be same, so equal to 0 here. You can see that now the neutral system will be considered. At that time the voltage is connections with the individually grounded. You can see that the VAG, VBG and VCG, it means के फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट की वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है. अब यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए हैं. वाई the along the underground system does not have the international connections of the ground, so this system is actually capacitive coupled to the ground. So generally ground सिस्टम और ग्राउंड फॉल्ट में हमको पता है कि बैक ईएमएफ जनरेट होता है और बैक ईएमएफ ट्रांसफॉर्मर के कॉइल में अफेक्ट होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर फ्लक्स के हिसाब से वर्क करता है. तो फ्लक्स विल बी ऑल्सो अफेक्टेड एंड द डैमेज द वाइंडिंग. सो द इट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द ग्राउंड सिस्टम्स. सो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट कनेक्ट किए होते हैं. सो प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्टेड होता है. सो दैट दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस इज ऑल्सो कॉल्ड restricted earth fault connections. Yes, restricted earth fault connections. So the connection, you can see that the primary winding of the transformer is connected in delta and the secondary side is connected in the stars, and these cities are connected in secondary side. The one city is connected in the neutral सर्किट, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्किट न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होती है. नाउ द अर्थ फॉल्ट रिले इज शोन इन द फिगर्स. यस, जो यहाँ पे अर्थ फॉल्ट रिले सेंस किया होता है और यहाँ पे यू कैन सी दैट के जो अर्थिंग किया हुआ है उसमें एक पॉइंट कनेक्ट होता है. सो द फॉल्ट करंट विल फ्लो थ्रू द cities of the neutral, so that the current will flow through the secondary of the cities in the neutral and the relay is operated. यानी कि जब अर्थ फॉल्ट होता है तब करंट यहाँ से होके इस तरह से सर्कुलेट होता है एंड दिस न्यूट्रल सिटीज एंड द रिले इज सेंस दिस फॉल्ट एंड दी ऑपरेट दी सर्किट्स. सो सपोज द अर्थ फॉल्ट टेक प्लेस आउटसाइड द प्रोटेक्शन. अगर अर्थ फॉल्ट जैसे कि यहाँ पे दिखाया है आउट ऑफ दिस प्रोटेक्शन से, तो डू नॉट सेंस द अर्थ फॉल्ट रिले ऑफ द फॉल्ट एंड नॉट टू ऑपरेट द circuit breakers. So now second one is interturn faults. So it is the challenging problems to the power engineering to detect this fault, because you can see in the figures it is easily understand that generally there are the three type of faults arise in the transformer winding: interturn faults, interwinding faults and earth faults. इंटरटर्न फॉल्ट्स मीन्स जो हम इस तरह की वाइंडिंग ड्रॉ करते हैं उसमें ये जो दो वाइंडिंग के बीच में फॉल्ट होता है उसको इंटरटर्न फॉल्ट्स कहते हैं. देन दूसरा है इंटरवाइंडिंग फॉल्ट. यहाँ पे पेपर इंसुलेशन होता है. ड्यू टू द एनी रीजन्स द पेपर इंसुलेशन इज फेल, एट दैट टाइम द इंटरनल वाइंडिंग फॉल्ट इज अराइज. एंड द सेकेंड वन, अगर कोई वाइंडिंग ओपन हो जाता है और अर्थ के साथ कनेक्ट होता है तो देर आर दी कंसिडर एज अ अर्थ फॉल्ट. सो ये तीनों फॉल्ट, द इंसिपिएंट फॉल्ट आर नॉट डिटेक्ट एट दैट इंसिपिएंट
inceptions, so they will develop the more several fault that may result in damage the transformer. अगर ये हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो आगे जाके ट्रांसफार्मर को डैमेज करता है, और इसी रीज़न के कारण हमको ये पता नहीं चल सकता है कि जो फॉल्ट है वो इंटरटन फॉल्ट है या कुछ और है। सो इसके लिए एक हम एग्जांपल्स लेते हैं। जनरली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरटन फॉल्ट्स? द फॉल्ट बिटवीन एडजस्टेड टू टर्न्स ऑफ कॉइल such the face-to-face fault and on the HV and LV terminal is called the interturn faults. Okay, now here we can explain the one example. अगर प्राइमरी साइड की वैल्यूज़ है 400/√3 किलोवाट्स एंड सेकेंडरी साइड फॉल्ट हो रहा है बिटवीन द टू कॉइल्स एंड द secondary side current and resistance is also given. Now यहाँ पे यू कैन सी दैट ज़ीरो दिया हुआ है बिकॉज द व्हेन द फॉल्ट इज अकर एट दैट टाइम इनफाइनाइट करंट विल बी पासिंग थ्रू दिस. सो नाउ द वी नो दैट द इन सेकेंडरी साइड, सो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? द 400/√3 इंटू 1000 बिकॉज द किलोवाट दिया हुआ है. सॉरी, यस, तो किलोवाट दिया हुआ है इसलिए 1000 वाट. नाउ द पावर, वी नो द इक्वेशन ऑफ पावर I²R. सो हियर द सेकेंडरी साइड current is 300 and 1 milliohm, so 3000 square into 10⁻³ so the power is secondary side is 9 kilowatt. Okay, now the comparing this primary and secondary side voltage and currents, so we get, so primary side current is this 400/√3 into 10⁻³ एंड करंट इज़ I1. हमको करंट I1 का पता नहीं है, ये हमको एक्चुअली फाइंड करना है. देन सेकेंडरी साइड करंट इज़, यू कैन सी दैट 5 वोल्ट इंटू 3000. सो हियर, सो यू कैन फाइंड द इजीली I1. सो I1 वैल्यूज इज़ 0.065 0.065 एम्पियर्स. सो इस तरह से हम इंटरनल फॉल्ट्स यानी कि इंटरटन्स फॉल्ट्स हम फाइंड कर सकते हैं. हमको प्राइमरी साइड की रेटेड वैल्यूज़ पता है, सेकेंडरी साइड का हम मेज़र कर सकते हैं. सो इस 3 चीज़ों की वजह से हम इनिशियल करंट फाइंड कर सकते हैं, और इसी वजह से हमको पता चलता है कि सेकेंडरी साइड इंटरटन फॉल्ट्स हुआ है. सो दिस आर द मेथड. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इंसिपिएंट फॉल्ट्स और बुकोज रिले. सो नाउ व्हाट इज़ द इंसिपिएंट फॉल्ट्स? So basically the incipient faults are internal faults which consist of no immediate hazards, but these faults are overlooked and not take care of this may be lead to major fault. जो छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं जिसको हम निगलेक्ट करते हैं और वो जाके आगे जाके जो बड़ा प्रॉब्लम और मेजर फॉल्ट क्रिएट करते हैं, उसी फॉल्ट को इंसिपिएंट फॉल्ट कहते हैं. जनरली इस किसकी वजह से होता है? द इंसुलेशन फेलियर्स बिटवीन टू कोर लैमिनेशंस, देन lowering the oil due to the leakage, the blockage of the oil and following the path. सो इसकी वजह से क्या होता है? ओवर हीटिंग प्रोड्यूस होता है. अब ओवर हीटिंग यानी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशंस जनरेट होते हैं, और शॉर्ट सर्किट ये जो भी प्रोसेस होती है वो टैंक के अंदर होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर होती है, और इसकी वजह से जो टैंक में शॉर्ट सर्किट जनरेशन होता है यानी कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से बबल्स जनरेट होता है. नाउ तो सबसे बेस्ट
प्रोटेक्शंस है बुकोज रिले। यस, हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखा था बुकोज रिले। यस, दिस वन इज द कंस्ट्रक्शंस एंड द प्लेसिंग ऑफ द बुकोज रिले। दिस वन इज द ट्रांसफॉर्मर टैंक, दिस वन इज द कंजर्वेटर टैंक, एंड बिटवीन टू दिस द बुकोज रिले। अब बेसिक हमको सिचुएशंस पता है कि जब इंटरनल फॉल्ट्स होता है ट्रांसफॉर्मर टैंक के अंदर, तब शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवर हीटिंग की वजह से जो टैंक के अंदर जो ऑयल है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से बबल्स जनरेट करते हैं। वो बबल्स बुकोज रिले में होके कंजर्वेशन टैंक में जाते हैं, और वो जिस टाइप का फ्लो होता है, जो बबल्स का फ्लो होता है, उसकी वजह से बुकोज रिले ऑपरेट होती है। ये बेसिक उसका कंस्ट्रक्शंस हमने ऑलरेडी आगे देख चुके हैं। सो यस, दिस वन इज़ द इनलेट वाल एंड दिस वन इज़ द आउटलेट वाल। अब क्या होता है कि जब ट्रांसफॉर्मर टैंक में, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर टैंक है, ट्रांसफॉर्मर टैंक में कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, तब शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे बबल्स जनरेट होते हैं। वो बबल्स यहाँ पे आते हैं, ये जो मर्क्यूरी स्विच है, दिस वन इज़ द मर्क्यूरी स्विच। सो इसको पुल अप करते हैं और ट्रिप सर्किट करते हैं, और उसके बाद हमको अलार्म सर्किट इंडिकेशंस होता है, जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुके हैं, और ये कंजर्वेशन टैंक में जाता है। सो बेसिकली देयर आर द टू functions, the alarm and the trip outputs. So how it's work? You can see that here. Yes, the first one is to trip the circuits, and then after alarm circuit. So these are the functions or the working principle of the बुकोज रिले, कि जो बबल्स जनरेट हो रहे हैं वो इंटरनल शॉर्ट सर्किट की कोई भी रीज़न की वजह से, इंटरनल फॉल्ट की वजह से ये बबल्स जनरेट होते हैं, और पहले ट्रिप सर्किट को ओपन करते हैं एंड देन आफ्टर द अलार्म सर्किट को ओपन करते हैं। नाउ द बुकोज रिले का एडवांटेजेस क्या है? व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द बुकोज रिले? तो वी नो दैट कि कंस्ट्रक्शंस इज़ वेरी सिंपल। हमने देख लिया सिंपल है, ये एक सिंपल मैकेनिज़्म है, और उसके ऊपर मर्क्यूरी स्विच है। यहाँ पे भी उसी तरह का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, यू कैन सी केयरफुली कि पहले ए स्विच को ओपन करते हैं, देन ये जो बबल है वो ऊपर जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है और वो नीचे आती है। ये स्विच ऊपर नहीं जाती है, नीचे आती है, इसकी वजह से वो अलार्म ओपन होता है। सो व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द बुकोज रिले? सो फर्स्ट इज it is used only for the oil cooled transformer with the conservator। हमने देखा कि ये जो यहाँ पे जगह होगी, इट मीन्स दैट कि यहाँ से ऑयल आगे जाएगा, यानी कि अगर कंजर्वेटर टैंक के बिना बुकोज रिले यूटिलाइज होता नहीं है। सो विदाउट कंजर्वेशन टैंक द बुकोज रिले इज नॉट यूटिलाइजेशंस। एंड द नेक्स्ट वन इज मर्क्यूरी स्विच सेंसिटिव नहीं रख सकते, क्योंकि अगर सेंसिटिव रखेंगे तो कुछ भी वाइब्रेशंस आएंगे तो बुकोज रिले ओपन हो जाएगा। सो दे हैव टू मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द बुकोज रिले। यस, सो नेक्स्ट वन इज यस ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शंस ट्रांसफॉर्मर। सो हम जनरली जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड होती है, और दोनों के बीच में फ्लक्स के हिसाब से वर्क होता है। सो जनरली ये फ्लक्स होता है, फ्लक्स मीन्स के एफ, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक फ्रीक्वेंसी है और एक वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज चेंज होता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और करंट के हिसाब से। So overfluxing is the voltage and frequency based issues. Generally, it need to the voltage and frequency based protections. अब क्या होगा कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वजह से फिफ्थ हार्मोनिक जनरेट होता है और ओवरफ्लक्सिंग की वजह से होता है। सो नो करेक्शंस बिटवीन द लेवल ऑफ द
फिफ्थ हार्मोनिक सेरिविटी ऑफ द ओवरफ्लक्सिंग, यानी कि फिफ्थ हार्मोनिक तब जनरेट होंगे। सो ये जो फिफ्थ हार्मोनिक है वो जनरली बहुत अफेक्ट करता है इन आवर पावर सिस्टम्स। So these are the causes of the overfluxing. So how we can measure this? We know the basic equations of the EMF, the 4.445 F N, flux, frequency and number of turns. Now if I find the flux related equations, so E upon 4.44 F N, ये जनरली हमारा सिन्यूसॉइडल का इक्वेशंस है। नाउ इफ़ आई से दैट के 4.44 upon n is related to the constant frequency k primary side, so that our equations of, we can say that the phi equal to k into v by f. V means voltage of the transformers. Now the flux density B equations is phi by a, यानी कि flux is dependent on the areas. So put these values in these equations. So B is equal to k in k upon a into v by f. So we can say that, you can see here, the k1 means k by a. So k1 into v by f, it means we can say that the flux density is directly proportional to the v by f. So the flux density is in the core directly proportional to the v by f. It means the number of turns of the primary is fixed. Primary turns fix होते हैं, secondary turns में हम change कर सकते हैं. So how it protections for the transformers? So protection against this overfluxing is specially need in case of the unit connected generator ट्रांसफॉर्मर, यानी कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें अलग से हम एक यूनिट कनेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ए रिड्यूस हो सकता है. दिस ट्रांसफॉर्मर इज ट्रिप इन 1 or 2 minutes एट द मोस्ट इफ ओवर फ्लक्सिंग, यानी कि ओवर फ्लक्सिंग होता है तो मैक्सिमम ए 1 या 2 मिनट में टर्न ऑफ हो जाता है. और जनरली दिस वन प्रोटेक्शंस इज माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर्ट्ज रिले हैज़ बीन डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, एंड नाउ डे इट इज़ यूज्ड, यानी कि अभी भी ये सिस्टम यूटिलाइज हो रही है. सो दीज आर दी ओवरफ्लक्सिंग सिस्टम्स. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स एंड ऑफ दिस सेशंस, the protections given of the transformers to the different type of transformers. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर लिखे हैं और उसको कौन कौन से प्रोटेक्शंस रिक्वायर्ड रहेंगे. जैसे कि स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है तो दे हैव रिक्वायर्ड द 2 प्रोटेक्शंस, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शंस एंड ओवर करंट प्रोटेक्शंस. यानी कि अगर 500 kVA रेटिंग के नीचे है तो, अगर उससे ज़्यादा है तो ओवर रिस्ट्रेनिंग अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शंस रिक्वायर्ड है, देन ओवर करंट एंड बुकोज रिले. अगर 5 MVA यानी कि 5 MVA रेटिंग से अबोव है, जनरली ये जनरेशन स्टेशन स्टाइल होता है, तो उसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस चाहिए, देन रिस्ट्रेनिंग फॉर फॉल्ट, ओवर करंट प्रोटेक्शंस, बुकोज रिले एंड ओवर टेम्परेचर्स protection systems. So these are the type of transformer and the protections is given for the different transformers or ratings. So today's we can learn about the different type of protections in the transformers. Today's assignments or the worksheet questions is, first one, the ground fault अफेक्ट दी ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ग्राउंड फॉल्ट किस तरह से ट्रांसफॉर्मर को अफेक्ट होता है. द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंसिपिएंट फॉल्ट एंड द डेफिनेशंस ऑफ द टर्न ओवरफ्लक्सिंग, यानी कि ओवरफ्लक्सिंग क्या है.
Now your assignment questions is how the interturn faults work, and they write the short note of overfluxing protections for the transformer. So these are the questions for worksheets, 3 questions for worksheets and 2 questions for assignment. Now the worksheets sheet's name is your enrollment number, name, unit 4 and worksheet 14. So if any query regarding this topic, you can contact me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number in your screen. Thank you.